Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 23rd of August 2023. From today's newspaper, these are five topics from today's newspaper we will be discussing. The number one is about the biodiversity of the northeast region of India, how we can conserve this biodiversity of the northeast. The second discussion is about the toxic masculinity or the feminism. We will discuss both the side of the coin, that is about the masculinity as well as the feminism. Third, about the failure of the Luna 25 mission. ये एक मून के ऊपर एक स्मूथ लैंडिंग का एक मिशन है बाय द रशिया. Then we will be talking about the section 8 subclause 4 of representation of people act, उसको रीस्टोर करा जाए या नहीं करा जाए. और लास्ट में हम देखेंगे अबाउट द पब्लिक चेक प्लेटफॉर्म for frictionless credit created by the RBI. So these are the topics of discussion in the today's session. So before we start the discussion, I would like to request all of you to please do subscribe our channel IAS Cafe and like and share if you're really liking the video. If there's any valuable feedback, you're always welcome. Please do write down in the comment section. All right, now coming back to the main topic, that is the biodiversity of Northeast. There is a there is an editorial in today's newspaper which talks about that the northeast region of India. Actually, the gist of the editorial is that the northeast region of India is not that developed. They needs to be, they need something to make the policies regarding the growth and development in the northeast region. But it should not come, this growth and development should not come at the cost of environment, at the cost of climate change, at the cost of bad impact on the biodiversity of that region. So regarding this is the editorial. So before we discuss about why we are focusing on the biodiversity of northeastern regions specifically, what is biodiversity, how there is the loss of biodiversity, or what are the factors responsible for the biodiversity. Firstly, we should understand what exactly is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है. सबसे पहले ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ जब भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, साइंस से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, ट्राई टू ब्रेक दोज वर्ड्स. इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. फॉर एग्जाम्पल, बायोडाइवर्सिटी. इफ आई ब्रेक दिस टर्म, द टर्म बायो कैन बी played as something which is living. Okay, and when I talk about the diversity, it is something which I can call as the variety, right? So in a broader way, what we are saying that the number and variety of living organisms, okay, that is biodiversity. Diversity means variety, bio means living. That is the number and variety of living organisms present in the specific geographical region is known as biodiversity. ठीक से समझते हैं. मान लीजिए आपके पास एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है. इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर आपके पास एक ब्लैक कलर का घोड़ा है, आपके पास एक विमेन है, आपके पास यहाँ पे एक डॉग जो है वो मिल जाएगा, कैट मिल जाएगी, एक मैन मिल जाएंगे, ट्रांसजेंडर मिल जाएंगे आपके पास, बच्चे मिल जाएंगे, घोड़ी मिल जाएगी आपके पास, राइट. यू विल फाइंड बफेलो हो जाएगा. तो ये जो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है,
इनकी आपको जो वैरायटी मिलती है पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के अंदर, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। क्लियर है दैट द बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। अब इसके अंदर जैसे आपने एग्जाम्पल्स लिए ह्यूमंस के, राइट, इसमें आप प्लांट्स भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लोरा होगा, देखो जब भी आई विल से फ्लोरा मतलब प्लांट की बात हो रही है, वेजिटेशन की बात हो रही है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द फौना, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। So these are the two technical terms related to the science, that flora means the plant or the vegetation, fauna means animals. So that means you can also define biodiversity as the variety of flora and fauna, the variety of plants and animals, the microorganisms in a particular region. The variety in their genetic structure is something which forms the ecosystems that is considered as the biodiversity. Okay? अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। एक यहाँ पे बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा साइज में छोटे होते हैं, दे आर वेरी माइन्यूट इन द साइज। वी कैन नॉट सी दीज ऑर्गेनिजम्स विद अवर नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब कि नॉर्मली हम जिस तरह से चीजें देख पा रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाते हैं। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जैसे दही है, दही में जो कीटाणु होते हैं क्या आप नॉर्मली देख पाते हैं? नहीं। बट उसी कर्ड में अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा के, और आई एम सॉरी माइक्रोस्कोप लगा के अगर आप देखोगे, तो यू विल फाइंड सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रो। क्लियर? So it relates to the diversity among the living organisms on the earth, including the diversity within and between the species, that within and between the ecosystem they form. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने क्या बोली है, हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यानी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे एनिमल्स है, यहाँ पे ह्यूमंस हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो दिखता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, आपके पास बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। तो इन इंसानों का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी जो वैरायटी है वो भी बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो ये है विद इन द स्पीशीज द बायोडाइवर्सिटी, और ये अलग अलग स्पीशीज में जो डाइवर्सिटी है वो आपके पास बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये बायोडाइवर्सिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये टेक्निकल फंक्शंस या इंपॉर्टेंस को समझने के लिए से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमंस हैं, मान लीजिए उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। व्हेन आई एम सेइंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, लेट्स सपोज इट इज द सेम। Okay, what I'm saying, just imagine that the genetic structure of every human being on the earth is same. तो अभी जो रिसेंट कोविड पेंडेमिक आया था, अगर ये कोविड पेंडेमिक की वजह से एक इंसान की डेथ हो रही है, तो इसी हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है उन सब का खात्मा हो जाता, खत्म हो जाते वो लोग, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है, सबके जीन एक तरफ ही काम कर रहे हैं, एक तरह से ही काम कर रहे हैं, कोई वैरायटी नहीं है। ये अडॉप्ट नहीं कर पाया कोविड चेंज को, ये अगर फाइट नहीं कर पाया तो बाकी इंसान भी नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से तो पूरा इंसान खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि फॉर बेटर लाइफ स्पैन और फॉर द बेटर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द लाइफ, आप इस तरह से बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। फिर आप ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आप देख ही सकते हो कि इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल रोल। इकोसिस्टम की जो सर्विसेज होती है, द प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, social and cultural services, food web maintenance and the scientific role. Food web will definitely have a look जब हम environment का food chain पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ये मेरे फादर है, ये अगर मेरी मदर है,
ये मैं खुद हूँ और यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इस तरह से है तभी क्या ह्यूमन है। मतलब जो स्पीशीज है वो क्या है, यहाँ पे ह्यूमन की स्पीशीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। व्हाट वी कॉल दिस एज होमो सैपियंस। बट इन सभी इंसानों का, इन सभी ह्यूमन का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस देखा जाता है। देयर इज अ डाइवर्सिटी in their genetic structure. So that biodiversity is something known as the genetic biodiversity. Clear? Then second comes your species diversity. For example, यहाँ पे बहुत सारे humans हैं और यहाँ पे बहुत सारी birds मान लीजिए आप, फिर यहाँ पे आप बहुत सारे dogs मान लीजिए। तो ये अलग अलग स्पीशीज हो गई, यानी स्पीशीज के अंदर आपके पास क्या वैरायटी है, तो ये हो जाएगा आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी। सेम थिंग विद द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, लाइक यू विल फाइंड, हम लोग एथनिक रेसेस के बारे में बात करते हैं। अफ्रीकन जो निग्रो ट्राइब्स होती है, दे टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एशियाटिक ट्राइब्स, राइट। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी वाइज डाइवर्सिटी होती है वो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी हो जाएगी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी, just give me a second, how you will measure this biodiversity? Okay, coming to the biodiversity, we said that there was a community biodiversity. In particular community, we said there is a species. For example, this is your community A. This is your community B. In this, so this is your community biodiversity. एक particular community या geography के अंदर मान लीजिए ये humans है, यहाँ पे आपके पास ये plants हो जाएंगे, यहाँ पे ये animals हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स में यहाँ पे आपके पास डॉग्स हो जाएंगे, कैट्स हो जाएंगी, टाइगर्स हो जाएंगे, लायन हो जाएगा। ये आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई। और पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बट हाउ यू गोना मेजर दिस? तो ये जो मेजरमेंट है ये किया गया था बाय आर.एच. विटेकर। द कंप्लीट नेम इज आर.एच. विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है ऑर्गेनिजम्स का। ओके, that is the 5 kingdom classification was also given by this person, and they said that biodiversity can be measured via 2 major components. The number one is about the species richness and second is about the species evenness. ठीक है, अब species जो richness है उसको समझते हैं। It refers to the measure of a number of species found in per unit area of a region. मान लीजिए कि आपके पास ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है या फिर ये कम्युनिटी है, एक रीजन। इस कम्युनिटी के अंदर कितनी तरह की स्पीशीज है वो मेजर करने का तरीका क्या है आपके पास, स्पीशीज रिचनेस। और आप कैसे मेजर करोगे, एक हो जाएगा, देखो ये है आपके पास कैटेगरी ए, जिसको हमने फिर से बताते हैं, आपके पास 2 कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हो। पहला कंपोनेंट आता है आपके पास स्पीशीज रिचनेस का कंपोनेंट, ठीक है। द नंबर 1 इज अबाउट द स्पीशीज रिचनेस। ये आपने क्या बनाया, एक जोग्राफिकल एरिया। और फिर आता है आपके पास स्पीशीज इवननेस, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। अब हम बोल रहे हैं स्पीशीज रिचनेस के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किस तरह से हम उनको कितने नंबर ऑफ स्पीशीज को मेजर करेंगे। तो पहली कैटेगरी हो जाती है द अल्फा डाइवर्सिटी, सेकंड कैटेगरी होती है आपके पास द बीटा डाइवर्सिटी। ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है आपके पास द गामा डाइवर्सिटी। When I talk about the alpha diversity, that means found in a particular area or a species and is usually expressed by the number of species in that ecosystem. मतलब ये एक इकोसिस्टम है, ये एक एनवायरमेंट है, एक जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे कितनी स्पीशीज है, यानी कि एक हो गया घोड़ा, एक कैट हो गया,
एक टाइगर हो गया, एक लायन हो गया, लैपर्ड हो गया, पैरेट हो गया, राइट? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज इज देयर, उसकी जो काउंटिंग है वो हो जाएगी आपके पास अल्फा डाइवर्सिटी। फिर आता है बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम को लेते हैं, वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और एक इकोसिस्टम के अंदर दैट इज टू द कंपैरिजन, इट रिफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इस इकोसिस्टम में टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे मीडियम है, लेकिन यहाँ पे लायन का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस तरह से we compare the different ecosystem, we compare the presence of the species in different ecosystem. Usually it is measured in the change of number of species between the ecosystem. Clear है? Now coming to the third part, that is the gamma diversity. It is the measure of overall diversity for different ecosystem in the region. एक पर्टिकुलर रीजन है, उसमें अलग अलग आपके पास इकोसिस्टम है, इसमें ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है सारी स्पीशीज की उसको कंसिडर किया जाता है। बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें अलग अलग परसेप्शन होते हैं अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। नाउ सेकेंड कंपोनेंट जिसके थ्रू आप बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हो वो है स्पीशीज इवेंटनेस। It is a measure of relative abundance of individuals of different species in a given region. The low evenness in general means that few species dominate the region or ecosystem. अब बायोडाइवर्सिटी को खतरा कैसे है, रीजंस क्या है? पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही ज्यादा स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज का मतलब होता है, देखो एक कंसेप्ट है प्लांट क्वारंटीन का, कोविड से पहले क्वारंटीन चलता है सर, ये प्लांट क्वारंटीन का एक कॉन्सेप्ट है। So when we talk about the plant quarantine, what happens sometimes, for example, इसको country wise ले लेते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, this is the beautiful India, okay, and the geographical condition of this geographical environment or the climatic condition is totally different. एंड ये हमारे पास यूएस है। मान लो यूएस के अंदर एक प्लांट स्पीशीज है जिसको हमको ग्रो करवाना है और उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। ओके, लेट्स नॉट कंसीडर द प्लांट, हम रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं टाइगर का। इंडिया के अंदर हमने टाइगर इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे वो अफ्रीका से हो या कहीं से भी हो, तो हमने यहाँ पे क्या लिख के आगे, टाइगर, चीता, जो भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहे हमने कर लिया। बट अगर इस कंडीशन में इंडिया में पहले टाइगर, चीता होते थे बट वो एक्सटिंक्ट हो गए, बट कोई ऐसी स्पीशीज, कोई ऐसी जानवर या प्लांट जो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडॉप्टेबल नहीं है, फिर भी उसको लाके हम आर्टिफिशियली अडॉप्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके वजह से बाकी की जो स्पीशीज है उसके लिए वो एक एलियन स्पीशी बन जाता है और कहीं ना कहीं बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है दूसरी स्पीशी। ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है दैट इज directly affecting the biodiversity, the global climate change, the coexistence and the natural causes as well. फिर आता है आपके पास कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। एज पर द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कोई भी रीजन को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाना है तो उनको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, इसको एमटीआर कर लीजिएगा। एमटीआर है कि हर बार ऑल्टरनेट ईयर्स में पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखा जाता है, ये आपको आना ही आना चाहिए, वरना योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक नील बटा सन्नाटा। तो दिस इज एमटीआर, दैट इज मुझे तो रटना ही है, इट्स लाइक टिप्स पे होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, राइट? तो व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी रीजन अगर आपको उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले एरिया में ले जाना है तो कम से कम वहां पे 1500 वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज होनी चाहिए। व्हाट इज वेस्कुलर प्लांट? वो प्लांट जिसके अंदर कंडक्शन के लिए, यानी कि पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको आदान प्रदान करने के लिए आपके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम होता है, क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, फ्लोएम होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, दैट इट शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, कि वो सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, एंडेमिक। देन यहाँ पे जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसका 30% एरिया अगर लॉस हो चुका है, यानी थ्रेटेंड कैटेगरी में है, तब हम उसको हॉटस्पॉट की कैटेगरी में लेंगे। तो क्या इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? एक चीज याद रखिएगा इसमें, यूजुअली यहाँ पे पहले 3 कंसिडर किए जाते थे, बट रिसेंटली अब उसको 4 मान लिया जाता है, दैट इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। द नंबर 1 इज योर हिमालयन पोर्शन, ओके, देन द इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स and the Sundaland Islands. So there are 4 biodiversity hotspots in India. Number 1 is the Himalayan region. Number 2 is the Indo-Burman region. Number 3 is the Western Ghat, and number 4 is the Sundaland. So from like now, I'm assuming कि जो static है biodiversity का वो clear हो गया होगा. अब ये news में क्यों है उसको समझते हैं. Why it is in the news? Okay. So, okay, let me tell you, today's session might be a bit longer, so please just bear with me. I will just take your 30-40 minutes and the topics would be absolutely clear for everyone. Okay. Okay. So coming back to the news. अब न्यूज के अंदर बात हो रही है कि इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ओके, so this is India. Whoever wants to write the UPSC mains for your geography, that is the GS paper 1, practice to draw the map of India and the world in 5 seconds or something, 10 seconds. YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो राइटर बहुत ही सरकास्टिक वे में बोल रहा है कि इंडिया का टारगेट क्या है, कि हमको $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा एम है। हमारा टारगेट क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम $10 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किए बिना करना? आप एनवायरमेंट को ही नहीं बचा रहे हो, तो क्या ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी वर्थ है परस्यू करने के लिए? आप टूरिज्म फॉस्टर करवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसके ये सब मेथड है जिसके थ्रू जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो पैसा कलेक्ट कर रही है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और नौकरी देने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो दे रही है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बट ये सब का एक बहुत ही भारी एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है वो चुकाना पड़ेगा। अभी 2023 का एक रीसेंट एग्जाम्पल है मेघालय के अंदर। आई होप सबको नॉर्थ ईस्ट का मैप क्लियर है। दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, राइट, सॉरी, दिस इज दी असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 7 सिस्टर्स है। फिर यहाँ पे एक सिक्किम आ जाता है, जो कि 7 सिस्टर्स में नहीं आता, बट आप उसको नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये है दैट इज द मेघालय एंड त्रिपुरा। मेघालय में केस हुआ था, दैट इज द यूमियम लेक वर्सेस द स्टेट ऑफ मेघालय। तो यहाँ पे यूमियम लेक जो है उसके लिए कंट्रोवर्सी थी, जहाँ पे जो डिसीजन बेंच है जज की, उन्होंने क्या बोला, दैट अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप टूरिज्म को प्रमोट करने के नाम पे जो स्टेट है उसकी नेचुरल ब्यूटी को खराब नहीं कर सकते, एनवायरमेंट को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या बोला गया इस केस के अंदर, दैट इफ देर इज नो एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, तो आप पैसा कमाने के लिए, टूरिज्म बढ़ावा करने के लिए, जो टूरिज्म के नाम पे आप नेचुरल ब्यूटी जो है स्टेट को, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट फोकस में क्यों है। नॉर्थ ईस्ट एक तरह से पूरा एक ग्रीन बेल्ट रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैसेस है, मिनरल्स है, फ्रेश वाटर है, जैसे कि टी कल्टीवेशन हो गया, कॉफी कल्टीवेशन हो गया, ये सब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट द गारो खासी जयंता हिल, जो कि मेघालय के अंदर है, ठीक है, मेघालय के अंदर आपके पास यहाँ पे मैप क्लियर हो रहा चाहिए, गारो खासी जयंतिया हिल्स है, एंड द ब्रह्मपुत्र हिल्स
valley are some of the most important biodiversity hotspot. हॉटस्पॉट क्या है अभी हमने देखा। तो बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे अभी नहीं पहुंच रहा है, वहां पे बहुत ही ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखा जा रहा है, फ्लडिंग की कंडीशन जो है, जैसे असम हमेशा न्यूज में होता है फ्लड की वजह से। तो ये सब रीजन है कि इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही खतरा है इस रीजन के अंदर। अगर ये जो नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जो चालू किया उसका असेसमेंट करते हैं, किसने किया, Ministry of Development of North-Eastern Region. So as per this assessment, it is clearly mentioned that Northeast India lies within the ecological fragile, biologically rich region, highly prone to climatic changes, located in the Trans-Boundary River Basin. तो इस असेसमेंट के थ्रू ये बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो पूरी तरह से इकोलॉजिकली फ्रजाइल सेंसिटिव रीजन के अंदर आता है। ये रीजन बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोन है। यहाँ की फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स है, फोना यानी कि जो एनिमल्स है, दे आर अंडर सीरियस थ्रेट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द माइनिंग एक्टिविटीज, द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो क्या एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई लॉज नहीं है? जी बिल्कुल। देखो बहुत सारी डिबेट डिस्कशंस होते हुए आए हैं और बहुत सारी लॉज भी बनते हुए आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दैट इज एनवायरमेंट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस है, उन्होंने एक पब्लिक नुआंस के शेप में इट हैज टेकन द पार्ट अंडर द सेक्शन 268 टू 290 ऑफ इंडियन पिनल कोड। बट इस पे अब ज्यादा डिस्कशन जो है डिटेल में करने का फायदा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है इंडियन पेनल कोड और बाकी के जो दो क्रिमिनल कोड और है उनका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। एक्चुअली इनको पूरी तरह से एमिट कर दिया गया है, जिसका अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियो, इसमें डिटेल्ड डिस्कशन दे रखा है। फिर आता है आपके पास सिक्स्थ शेड्यूल। देखो पॉलिटी अगर आप सबने पढ़ी है तो उसके अंदर आप हमारी पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फिफ्थ शेड्यूल होता है और एक सिक्स्थ शेड्यूल होता है। दोनों में ही स्पेशल प्रिविलेजेस जो है कुछ स्टेट्स को दे रखे हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज को दे रखे हैं। तो जो सिक्स्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऑटोनॉमी देता है कि यहाँ पे वो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट कर सकता है रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ लैंड यूज। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली जा रही है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है अंडर द आर्टिकल 32 जो कि रिट पेटिशन को बात करता है। आर्टिकल 32 इज योर रिट जुरिस्डिक्शन। It led to the environmental litigation over here. Now, the pressing priority. The writer के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, what should be the priority here. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक बैलेंस वे में काम करना पड़ेगा, जहां पे एक तरफ वो एनवायरमेंट को भी हानि ना पहुंचाए, प्रॉब्लम ना पहुंचाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दे, रेवेन्यू जनरेट करे। दैट मीन्स द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, so the writer is talking about the sustainable development. Sustainable development ऐसा होता है जिसमें हम डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन सिर्फ उस हद तक जहां तक हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। राइट, फिर राइटर कहता है कि यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट का जो कंसेप्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, वो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन और राइट स्टेप लिया गया है, जिसके अंदर इट इज इफ एन एंटिटी इज नॉट कंप्लाइंग, कि अगर कोई भी एंटिटी अगर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करती है, राइट, if they're not having applicable environmental clearances, does not have consent from the concerned pollution board, it will not be eligible for any incentive under the scheme. तो एज अ कंक्लूजन, जो हमारे पास एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, हमारी पॉलिसी आई है जिसको बोलता है एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, इसमें सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमको एनवायरमेंट और इकोलॉजी को भी ऐड करना चाहिए। जब हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं तो इसके अंदर एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की भी बात होनी चाहिए, सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं होनी चाहिए।
So this was all about the first topic. Take your time and take 1 minute and just recall whatever we had studied, and then we will move to the second topic. Okay, coming to the second topic, टॉक्सिक फैमिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लस बहुत ही सीरियस टॉपिक है। You can definitely relate it to the social justice or the social issues, the women and men. Wait a minute. Social issues, men, women and बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसमें बात हुई है कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से या फिर एक सोसाइटी की प्री कंसीव्ड नॉर्म की वजह से women are forced to behave in a certain way, and same thing is for the men, that men are forced to be behave in a certain way कि आप लड़की हो आपको ऐसे रहना चाहिए, आप लड़के हो आपको ऐसे रहना चाहिए। लड़का है रोता थोड़ी है, पागल है क्या? बॉयज डोंट क्राई, यू आर मैन, बी अ जेंटलमैन, यू कांट क्राई, right? So these are the situations in which you can say that the society builds a pressure that men have to behave in a certain way and women have to behave in a certain way. Oh, are you going out of your home? No. Women घर संभालने के लिए आप घर पे रहिए। आप जितना ज्यादा घर पे रहोगे आपको एक देवी की तरह पूजा जाता है। जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको एक बहुत टैग दे दिया जाएगा, यू आर कैरेक्टरलेस, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन होम, यू आर नॉट अ फैमिली पर्सन। So on that discussion, this topic is all about, that is the toxic femininity. तो राइटर कह रहा है कि ये जो टर्म है टॉक्सिक फेमिनिटी पहली बार कब यूज हुआ ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक टर्म यूज हुई थी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ओके, दिस इज द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ये टर्म जो है इट वाज coined by the Shepherd Bliss during the mythopoetic men's movement in 1980। तो इसी से रिलेट कर सकते हो ये टर्म द टॉक्सिक फेमिनिटी। तो ये जो टॉक्सिक फेमिनिटी है, इस टर्म का पॉपुलैरिटी आया था 2010 के आसपास, जहां पे जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं वो एक्सप्लेन करना चालू होते हैं कि किस तरह से वुमेन एक ट्रेडिशनल एक स्टीरियोटिपिकल जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कन्फाइंड होके रह रही है, उनका जो बिहेवियर है वहां तक सीमित है। तो उसको बहुत ही लोकल एक ले मैन एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर वाज अ टाइम, आई होप मैं आपको ये इमेजिन कर पाऊँ, करवा पाऊँ, देयर वाज अ टाइम when women used to cook food at your home। इमेजिन करिए आपकी जो ग्रैंड मदर्स हैं वो वाला टाइम, they used to cover their faces wearing lots of jewelry, the traditional attire, एकदम गर्मी में वो खाना बना रही होती है और जो मेल पार्ट है दे आर एंजॉइंग सिटिंग नॉट डूइंग द हाउस होल्ड को। फिर आप एक जनरेशन आगे इमेजिन करिए, women is wearing a sari, a bit of comfortable, more than that, less jewelry. Still, she is cooking in the kitchen. Men are not helping in the household chores. थोड़ा और आगे इमेजिन करिए, women wearing the suit with dupatta, less jewelry, but still cooking in the kitchen. The men are not helping in the household. A more high level of imagination, the women wearing their pajamas, their t-shirts, the more comfort level, no jewelry, but still they are cooking. The men are not.
helping in the household chore. A bit more imaginative. Women are in the shorts, in the t-shirts, they are more comfortable and they are told it's okay if you're not, doing household chores, sit down. बट दे नो कि करने वाला और कोई नहीं है. उनके माइंड में ये फिट हो रखा है that we are meant to look after home. No matter if the men will do the work, they will be tense. इसको समझेगा कि वो टेंशन में रहेंगे कि how he will do, how he will do, I have to help him, I have to help. So there is a certain way through which it has been inculcated in the mind of the people that women have to behave in a certain way, men have to behave in a certain way. Meanwhile, the anti-feminist and the conservative interpretations of the term are once again boxed. जब ये आपके पास जो बारबी मूवी आई. Now, the toxic masculinity. Before delving in the concept of the toxic femininity, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं. अमेरिकन साइकोलॉजी की जो प्रोफेसर है वो शेफर्ड ब्लिस जो है, जिनकी जो राइटर है, उन्होंने इसको एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. एंड क्या बोला उन्होंने दैट बहुत ही it's a very serious topic. I mean, I want everyone to listen this, not only the students but everyone of any age. उन्होंने बोला दैट फादर और जो सन का जो रिलेशन में जो गैप है, आप ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे आपके पास फादर है और यू आर हैविंग द मदर. तो जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो एक टाइम तक वो फादर की बहुत क्लोज रहती है, फिर वो मदर के साथ फ्रेंडशिप में आ जाती है, फिर उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वो हस्बैंड के साथ चली जाती है या फिर उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं. वो कभी अकेला लोनली फील नहीं करती है, राइट. उनकी जो प्यूबर्टी आती है, जो हार्मोनल चेंजेस है, वो मम्मी के साथ शेयर कर सकती है, बाद में अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती है. लेकिन जो आदमी होता है, जो मेन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि चलो बचपन तक तो ठीक है, बट जैसे प्यूबर्टी की एज आती है तो ऑब्वियसली द पर्सन फील्स अनकंफर्टेबल मदर के साथ शेयर करने में. तो यहाँ से वो कभी भी कुछ शेयर नहीं कर पाता. फिर जब वो अपने फादर के पास होता है तो बेटे और बाप का जो रिलेशन है यहाँ पे वो कभी भी एक क्लोज रिलेशन नहीं है, एक वो रिस्पेक्ट वाला रिलेशन होता है, एक डिस्टेंस होता है. तो अल्टीमेटली जो मैन होता है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाके इस चीज को जाके शेयर करे. और वो बाहर के एनवायरमेंट में एक्सपोज होता है, रूड शो करता है, अपने आप को रफ शो करता है, दे शो दैट वी डोंट हैव इमोशंस. बट कहीं ना कहीं उनका जो ये जो इमोशन है वो फिर डोमिनेंस में निकल के आता है, पर्टिकुलरली ओवर द वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू, उन पे चिल्ला के, उन पे पावर शो करके, और इन एनी वे, राइट. So the understanding suggests that the fostering a strong emotional bond between the fathers or father figures and their sons can help prevent the development of toxic masculinity traits. तो क्या traits है, जैसे कि violence है, dominance है, emotional illiteracy, sexual entitlement, hostility to the family. Clear? तो यहाँ पे ये राइटर का कहना है. अब जब आप मेस्कुलिनिटी को समझ गए हो टॉक्सिक वे में, अब आप फेमिनिज्म की तरफ आओ. As opposed to the toxic masculinity, whose definition has remained rather consistent, there have many interpretations of the concept of toxic femininity. From a feminist perspective, the toxic femininity arises from the societal gender expectations imposed for the women. जो स्टीरियोटाइप होता है वो, जैसे कि हाँ, ये बिल्कुल हंसी हुई, कितनी अच्छी है, how polite she is, how elegant she is. Oh wow, she is not saying, she is not argumenting. How submissive she is, what a nice lady. अगर आपने अपने राइट के लिए कुछ बोला वुमेन ने, वो वहीं पे खराब हो जाएगी. वुमेन अच्छी कब है? देखो, वुमेन के सिर्फ दो रोल हो सकते हैं, या तो आप वायलेंट. देयर आर ओनली टू रोल्स ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी. या तो आप चुपचाप गाय भैंस की तरह सुनते जाओ, हाय, इट्स ओके, क्या खाना पसंद करोगे, जैसा आप कहो, कहाँ चलना पसंद करोगे, जैसा आप कहो, कहीं पे भी चल लेंगे, हाँ कुछ भी कर लेंगे. और दूसरा है, अगर आपने राइट के लिए बात करी, दिस इज
my money. I want to take financial control of all my finances. This is my choice. This is my opinion. This is my the presentation. Then आपको एक तरह से bad women की तरह treat किया, right? So this is a stereotype. तो ये जो phenomena है, it can be seen as an internalized misogyny, compelling the women to adhere to the social norms that keep them the subject. So this is in short जो कि हमने इस पूरे gender binary के बारे में देखा. This is the topic जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते. Now coming to the third topic is about the Lunar 25. Very interesting. इंडिया में चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात हो रही है. A mission on the soft landing of the moon. Okay. तो ये लूना 25 रशिया का मिशन है with the same objective, that is the soft landing on the moon. So recently Russia launched its first moon landing spacecraft जो कि 47 years के बाद हुआ है, first nation to make the soft landing. So why Russia is reaching the moon earlier than India? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है that 14 जुलाई को 14 जुलाई को इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था. तो रशिया ये कोशिश क्यों कर रहा है लूना 25 से कि वो इंडिया से पहले मून का जो साउथ सरफेस है उस पे एक स्मूथ लैंडिंग करे. Why? Because Russian mission was able to follow a more direct trajectory towards the moon. क्यों कर पाया पहले? क्योंकि इनको एक डायरेक्ट पाथ पहले जो है वो मिल गया था. इन्होंने बहुत ज्यादा सर्क्यूशल रूट जो है वो अपनाया. बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो ये है कि रशिया ने डिक्लेयर किया है दैट आवर मिशन हैज फेल्ड. 20 अगस्त को रशिया ने ये डिक्लेयर किया है दैट द मिशन हैड सफर्ड अ ग्लिच, अ टेक्निकल ग्लिच, एंड दैट क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस द प्रीवियस डे, जिसकी वजह से ये मिशन हमारा एक फेलियर हुआ है. लेकिन रशिया ने ये लूना 25 लॉन्च क्यों किया? क्या वो इंडिया से कम्पीट कर रहा था? नो. लूना 25 जो है कम से कम 20 सालों से रशिया इस पे काम कर रहा है. इनिशियली इसका नाम लूना ग्लोब दिया गया था. बाद में इसका जो नाम है वो चेंज किया बिकॉज ऑफ द लूना सीरीज जो कि 1976 से चल रहा है. इनका जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया दैट मिशन का जो पर्पस है वो टू इंश्योर रशिया गारंटीड एक्सेस टू द मून सरफेस, जो कि उन्होंने पहले भी डिक्लेयर किया था. रशिया और चाइना एक साथ आते हैं लीडिंग द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन वर्सेस द यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड. आर्टेमिस अकॉर्ड जितनी बार इसको याद कर सकते हो कर लीजिए. हैव अ रिसर्च ऑन इट. इट इज अ मिशन रिलेटेड टू द यूएस आर्टेमिस अकॉर्ड, राइट? सीधा क्वेश्चन आ जाएगा दैट द आर्टेमिस दैट इज द आर्टेमिस अकॉर्ड was recently seen in the news is related to what? Okay. So some experts have also said that रशिया किनका तो ये भी ओपिनियन है कि रशिया जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है उसमें जो रशिया को एक नेगेटिव तरह से देखा जा रहा है, तो उसको एक शो करने के लिए हमारे पास अभी भी पैसा है, इकोनॉमी हमारी क्रैश नहीं हुई है, कितने भी सैंक्शन लगा उसके बावजूद उसको प्रूव करने के लिए ये जो के लिए भी जो मिशन है वो यहाँ पे लाया गया. Now, how do the Luna 25 and Chandrayaan 3 differ? So when you talk about the Luna 25 and Chandrayaan 3, उसके कुछ डिफरेंसेस हैं. तो आप इस टेबल से देख सकते हो कि चंद्रयान 3 जो है इंडिया का 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और लूना जो 25 है रशिया का वो 10 अगस्त को लॉन्च हुआ. रॉकेट जो था हमारे रॉकेट का नाम था LVM-3M4 और इनका था सोयूज 2. लॉन्च साइट क्या थी यहाँ पे अपने पास? सतीश धवन स्पेस सेंटर. और रशिया की था ये आपके पास वोशानी कॉस्मोड्रोम. Then the launch mass was this. You can't go in so much of detail, but अगर आपको एक just for a one side, you can have a look on this page. तो यहाँ पे अब राइटर्स का कहना है कि क्या दोनों मिशन रेस में थे, क्या दोनों को होड़ थी कि पहले कौन जाएगा? तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है. वाई? बिकॉज बहुत सारी जो डिटेल्स है वो मिस अलाइन हुए हैं. टू एक्सपेक्ट दैट लूना 25 जो एक रेस के साथ था चंद्रयान 3, दोनों ही मिशन कुछ सिमिलर टाइम फ्रेम में लॉन्च हुए, लेकिन इसको आप ध्यान में देखेंगे
that these mission parameters are determined by the launch vehicles. Both the missions जो है सफर किए डिले में, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है that लूना जो है 25 इस पर रशिया बहुत पहले से काम कर रहा था, तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो यहाँ पे रशिया जो है उसको जानबूझ के इंडिया को हराने के लिए या फिर पीछे छोड़ने के लिए ऐसा कुछ हुआ है। So what happened to the Luna 25? देखो फेलियर क्यों हुआ, उनका जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वो छूट गया था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, राइट। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो आ गई थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों रशिया को रेस्क्यू नहीं कर पाए, भाई नई टेक्नोलॉजी है, डेवलप कंट्री है, व्हाट इज रॉन्ग विद रशिया। हुआ क्या है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया को एक तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से रशिया जो अपने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उसको पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहा बाकी कंट्रीज के थ्रू, राइट। लाइक the goodwill of many countries worldwide provoking the economic sanctions. इसका consequence क्या हुआ? Russia lost its privilege to use the satellite tracking systems which is operated by the countries in different parts of the world. Here, now coming to the next topic, which is of the section 8 clause 4 of the Representation of the People Act. इसको हम बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे, बाकी जो नोट्स है आप इन स्लाइड्स के थ्रू यहाँ से देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, ये एक न्यूज़पेपर का ही एडिटोरियल है, इट्स नथिंग स्पेसिफिकली रिटन, वी आर जस्ट डिकोडिंग द हिंदू ओवर हियर, ठीक है। तो ये पूरा आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। व्हाई वी विल डू दिस इन ब्रीफ, बिकॉज राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के मेंबर हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया था डिफेमेशन केस के बारे में, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना बताने के लिए कि जो सेक्शन 8 क्रॉस 4 है उसको रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो केस है उससे ये पता चलता है कि ये तो किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। राहुल गांधी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू द 2 years imprisonment, 2019 का जो डिफेमेशन केस था उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही इंस्टेंट था। क्यों? क्योंकि 2013 में एक जजमेंट आया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो जजमेंट है इसके थ्रू कोर्ट ने जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है रोपा 1951 का, उसको इनवैलिडेट कर दिया गया था। आई रिपीट, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के अंदर सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसको इनवैलिडेट कर दिया। तो जब ये सेक्शन हट गया तो ये चांस मिल गया कि जो इनका डिस्क्वालिफिकेशन पे जो अरेस्ट होता है या फिर जो इम्प्रिजनमेंट को इंस्टेंटली आप कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर 3 महीने का टाइम पीरियड देना होता था, लेकिन ये सेक्शन जब हट गया है तो इनका जो अरेस्ट था, जो इम्प्रिजनमेंट था, वो बहुत ही इंस्टेंट हो गया। ओके, so disqualification was not to take effect during this period when the appeal is admitted. Disqualification would depend on the final outcome of the appeal. Thus, under the legal provision, there was no instant disqualification of the sitting members of the legislation. तो इस सेक्शन के ऊपर ये पूरा जो आर्टिकल है या फिर जो एडिटोरियल है तो यहाँ पे बात की, ठीक है। Now, the last topic of the today, that is the public tax platform for the frictionless credit. हमारा कंट्री का जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इन्होंने एक पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। इट इज डेवलप्ड बाय हूम? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। किसने डेवलप किया है? दैट इज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। It is an end-to-end digital platform that will have an open architecture, open application programming interfaces, and standards to which all the banks can connect in a plug-and-play model. तो जितने भी बैंक्स है उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द प्लग एंड प्ले मॉडल। तो इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट process seamless
by providing all the required information in one place to facilitate the credit. यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए वो एक बटन दबाने से, एक क्लिक से, एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन उनको तुरंत मिलता है. तो प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, दैट डिलीवरिंग द क्रेडिट थ्रू द डिजिटल मीन्स, जैसे कि क्रेडिट अप्रेजल्स होता है, जो कि बोरोवर्स की एबिलिटी को आप इवेल्युएट करते हो कि क्या वो रीपे, अगर आप कोई लोन लेके जाते हो तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है कि क्या आप इस लोन को टाइम पे चुका पाओगे, क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप गिरवी रख सकते हो, क्या आपके पास सैलरी है जिसको आप गिरवी रख सकते हैं, एनीथिंग जो आपका एक बोरोवर की जो एबिलिटी होती है लोन चुकाने के लिए, उसको इवेल्युएट यहाँ पे किया जाता है. ठीक है, तो ये तीन सेक्शन या पिलर्स के बेसिस पे होता है. पहला, एडवर्स सिलेक्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, कि जो बोरो कर रहा है यानी जो लोन ले रहा है और जो लोन दे रहा है इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री है उसके ऊपर. दूसरा, एक्सपोजर रिस्क मेजरमेंट होता है और एक डिफॉल्ट रिस्क का असेसमेंट किया जाता है. तो यहाँ पे जो की डेटा सोर्सेस है ये क्या करेगा, इन सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा करेगा, सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट तक, अकाउंट एग्रीगेट, बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आपका एक जगह पे यहाँ पे आ जाएगा. इसकी वजह से जो हिंड्रेंसेस होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है रूल बेस्ड लैंडिंग प्रोसेस में, वो सॉल्व करने की बात यहाँ पे हुई. तो आप स्कोप या कवरेज की क्या होगा, आप अलग अलग कैटेगरी में जो डाइवर्सिफाई कर पाओगे लोन टाइप्स को, यानी द प्लेटफॉर्म स्कोप इनकम्पासेस जो डिजिटल लोन्स है जो कि केसीसी केवाईसी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है, एमएसएमई लोन्स है आपके पास जो कोलेटरल्स होते हैं, विदाउट कोलेटरल वो, डेटा इंटीग्रेशन की हमने यहाँ पे बात करी है. अब इसके बेनिफिट्स क्या है या फिर जो आउटकम है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है. इससे आपका जो क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो एनहांस होगा, access to credit would be improved, reduced operational cost, efficiency and the scalability. So what is the significance of financial inclusion? या फिर the credit in economic growth, income inequality जो कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिच और रिच बनता जा रहा है, जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर बनता जा रहा है. जो स्टार्टअप्स है, जो इनोवेशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको जब आप लोन देते हो तो इनके लिए इजी हो जाएगा, गरीबी हटाने के लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज वी टॉक अबाउट द क्रेडिट लोन्स एज वेल, राइट. So this is it for today's discussion. I know the topic went so a bit long, so thank you for bearing with me. If you're really liking our video, please do subscribe our channel, IS Cafe.